हीट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। हीट इंजन हम किसको कहते हैं? सो हीट इंजन को अगर हम इफ वी गो विद द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन, इट इज डिफाइंड एज हीट इंजन इज a device which converts heat energy into mechanical energy or mechanical work. So it means heat engine is a device that converts heat energy into mechanical energy or mechanical work. ठीक है बेटा। अब देखो, we have already studied that if we have a thermodynamic system in the form of a cylinder fitted with a piston and enclosing a gas, let me suppose if I am doing some external work on the piston, as a result of which gas gets compressed. When the gas gets compressed, the internal energy of the gas molecules increases. ठीक है बेटा। इट मीन्स जब भी एक्सटर्नल वर्क होता है एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम पे, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। नाउ इट्स रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। इट मीन्स वेन एवर वी डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, whenever we decrease the internal energy of the system, ठीक, work will be done by the system or we can get some work done by the system, ठीक है। it means the system will do external work. Now यही काम internal energy to get work done out of a system by reducing or at the expense of internal energy of a system, this thing is done by heat engine. Technically अगर हम बोलेंगे, heat engine is a device that extracts work from a thermodynamic system at the expense of its internal energy. I'll repeat, heat engine is defined as a device that extracts work from a thermodynamic system at the expense of its internal energy. और हमें बेटा पता है that internal energy is a function of temperature. Internal energy is a function of temperature. It means जब हम external work extract करते हैं एक thermodynamic system से, उसकी internal energy क्या होती है? Decrease. It means उसका temperature क्या होगा? Decrease. शाबाश। Now, so far as this heat engine is concerned, it consists of three important parts. The first part is that is called as source, ठीक है। The next part is that is working substance. And the third part is called as sink. The first part is source, the second part is working substance, and third part is sink. ये जो source और sink होता है, they are called as thermal energy reservoirs. Denoted by TER. ठीक है बेटा। They are known as thermal energy reservoirs, ठीक है। They have infinite heat capacity, ठीक है। It means if they supply a lot of heat or they absorb a lot of heat, there will be no change in their temperature, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो मैंने दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स लेते जो हम हैं हीट इंजन में, one thermal energy reservoir that acts as a source should have higher temperature than the other thermal energy reservoir that should have low temperature. The thermal energy reservoir having high temperature will be acting as a source of heat. That's why we call it source. And दूसरा वाला thermal energy reservoir which is having temperature less than that of the source will act as a sink, means it will absorb the heat. Whatever amount of heat it will absorb, there will be no change in its temperature, ठीक है बेटा। एक समंदर ले लो, एक हमारा एटमॉस्फेयर ले लो, जितना भी हीट इसमें हम बाहर किसी भी सिस्टम से खींच खींच के डालेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर, फाइन। सो द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ सिंक, एक समंदर एक्ट्स एज अ सिंक, ठीक है बेटा।
या समंदर में से कितना भी पानी आप निकालो बाल्टी भर भर के, उसके लेवल में कमी आने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। लाइकवाइज नाउ सोर्स विच इज अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1, वी हैव अ सिंक, ठीक है, which is also a thermal energy reservoir at temperature less than that of source, let me suppose temperature T2. So the condition here is temperature of the source is always greater than temperature of the sink, ठीक है। and what we have here is the working substance. working substance ऐसी चीज होती है जो काम करती है, ठीक है, which acts as a source to extract the work, जहां से हम एक्सटर्नल वर्क निकालते हैं, which acts as a source to extract the work, ठीक है बेटा। let me suppose एक डीजल इंजन है, ठीक है बेटे, एक डीजल इंजन है। डीजल इंजन में जो वर्किंग सबस्टेंस होता है वो होता है डीजल। एक स्टीम इंजन में जो वर्किंग सबस्टेंस होता है दैट्स ए स्टीम। पेट्रोल इंजन में देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, दे आर एक्टिंग एज वर्किंग सबस्टेंसेस जिनसे हम बेटा काम लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या है, हीट इंजन में, हीट इंजन में क्या है, ये जो वर्किंग सबस्टेंस है, ठीक है, हम ऐसे काम करते हैं, हीट इंजन ऐसे काम करता है such that the working substance restores its initial state, restores its initial state. It means हीट इंजन जो है वो एक साइकिल में बेटा काम करता है, वो एक साइकिल में काम करता है। लेट मी सपोज वर्किंग सबस्टेंस यहाँ एक स्टेट से काम करता है, इट विल गो एंड इट विल अंडरगो ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, इट विल अंडरगो ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच दैट फाइनली ये वर्किंग सबस्टेंस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाता है और फिर से ये यही प्रोसेस स्टार्ट करता है। सो आई विल से हीट इंजन का जो वर्किंग सबस्टेंस है इट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस and finally restores its initial state where from it again starts the cycle, ठीक है बेटा, so as to continuously supply some amount of work, ठीक है बेटा। और हर साइकिल में बेटा ये वर्किंग सबस्टेंस it gives out some amount of work. Now see, अब ये हीट इंजन काम कैसे करता है, ठीक है बेटा। मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे साइड में, दिस इज सोर्स, ठीक है बेटा, दिस इज वर्किंग सबस्टेंस and this is sink. Suppose the source is at temperature T1, sink is at temperature T2 such that temperature of source is always greater than temperature of sink, ठीक है बेटा। Now let me suppose ये जो working substance है it is extracting some heat Q1 from the source, ठीक है। अब suppose इस Q1 में से थोड़ा सा amount ये during the process क्या करता है, use करता है to produce some external work, and we know a part of this heat is used in giving some external work or producing some external work, so there will be some amount of heat now remaining with this working substance. Let me suppose अब अगर इस working substance को वापस अपनी initial state रेस्टोर करनी है, सो इसको वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट कहीं ना कहीं फेंकना है, तब ये अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आएगा। एंड वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट है, लेट मी सपोज Q2, वो ये किसको दे रहा है, सिंक को, तब जाके ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट को क्या कर रहा है, रिस्टोर, ठीक है बेटा। अगर ये अपने पास ही रखेगा फिर से जाके सोर्स के पास जाएगा तो इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिलेगी, तब इसको लेस देन Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। सो इन ऑर्डर टू again get the Q1 amount of heat from the source, what it has to do, it has to unload its heat, इसको अपनी सारी हीट अनलोड करनी है किसके पास, सिंक के पास, तब जाके ये अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा, फिर Q1 हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा यहाँ से। अगर इसने Q1 हीट सिंक को नहीं दी, क्या होगा, ये अपनी इनिशियल स्टेट रिस्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो Q1 अमाउंट यहाँ से नहीं ले पाएगा। नाउ अगर मैं इसकी एक डायग्राम दिखाऊँ आपको, आई विल शो एक्चुअल डायग्राम ऑफ द हीट इंजन हेयर, बहुत कम बुक्स दिखाती हैं, सो ध्यान से पढ़ो।
तो क्या होता है बेटा, हमारा जो वर्किंग सबस्टेंस है, लेट मी सपोज मैं यहाँ पे वर्किंग सबस्टेंस को लेता हूँ वाटर. सो लेट मी सपोज वाटर इज टेकन एज अ वर्किंग सबस्टेंस हेयर. सो यहाँ पे बेटा क्या होता है, दिस इज अ बॉयलर, दिस इज अ टर्बाइन एंड दिस इज अ कंडेंसर. ठीक है बेटे. अब देखो जी, देखो बेटा होता क्या है यहाँ पे. लेट मी सपोज दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस वर्किंग सबस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा वाटर है जिसको हमने यहाँ पे एज वर्किंग सबस्टेंस लिया है, लेट मी सपोज यहाँ पे इट्स एट लिक्विड स्टेट, इट्स एट लिक्विड स्टेट. व्हाट विल हैपन वंस दिस विल पास थ्रू अ बॉयलर, बॉयलर विल एक्ट एज अ सोर्स, boiler will act as a source, means boiler will supply heat to this working substance water. Let me suppose Q1 amount of heat boiler ने supply की इस water को while going through these channels. ठीक है बेटा. So this water has absorbed an amount of heat Q1 from the boiler. So boiler is acting as a heat source. Let me suppose T1 is the temperature of boiler. Okay बेटा. नाउ इससे क्या होगा, इस लिक्विड की स्टेट चेंज होगी फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ये हॉट वेपर बनेगा. एंड दिस हॉट वेपर विल पास थ्रू दीज चैनल्स एंड ये कहाँ पहुँच जाएगा, टर्बाइन में. टर्बाइन में बेटा क्या होता है, इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं. ठीक है बेटे. तो क्या होता है, जब ये वेपर इन ब्लेड्स के ऊपर से गिरेगा, दीज ब्लेड्स विल स्टार्ट रोटेटिंग, these blades will start rotating and let me suppose there is a shaft connected with these blades. वो shaft भी क्या होगा, वो rotate हो जाएगा, that will show rotational motion. ठीक है बेटा. ठीक है. नाउ इससे क्या होगा, इससे थोड़ी सी एनर्जी इन वेपर्स की कम हो जाएगी, वो मिलेगी इन ब्लेड्स को रोटेट करने में. इट मीन्स दिस Q1 में से थोड़ी सी एनर्जी निकली, वो यूज हो गई यहाँ पे एज मैकेनिकल वर्क, वो हमें यहाँ पे मिली एज मैकेनिकल वर्क. अब इन वेपर्स के क्या है, अब जो ही इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी अपनी लूज़ की, हीट एनर्जी लूज़ की. ठीक है बेटा. सो अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्किंग सबस्टेंस टरबाइन की एग्जिट पे निकला, वो भी वेपर ही होगा, लेकिन उसका हीट कंटेंट कम होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा. अब देखो बेटा, लेकिन स्टिल इसके पास थोड़ी सी हीट होगी, स्टिल उसके पास कितनी हीट होगी, Q2. Q2 जो लेस देन होगी किससे, Q1 से. अब क्या होगा, वंस दिस वेपर विल पास थ्रू वन मोर पार्ट ऑफ दिस साइकिल दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसर. कंडेंसर बेटा क्या काम करेगा, कंडेंसर इस वर्किंग सबस्टेंस में से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, इस वर्किंग सबस्टेंस में से हीट को निकालेगा और एटमॉस्फेयर को देगा सपोज, या किसी पानी को देगा. ठीक है. So this condenser, what will it do? It will extract all the heat, this Q2 from this working substance. ठीक है. और सराउंडिंग्स को दे देगा, सराउंडिंग्स विच आर एक्टिंग एज सिंक, या सिंक में डाल देगा. ठीक है बेटा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जब कंडेंसर से यहाँ वर्किंग सबस्टेंस निकलेगा, दैट विल बी अगेन इन द लिक्विड स्टेट. इट मीन्स ये वर्किंग सबस्टेंस फिर से साइकिल के स्टार्ट पे अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच गया. ठीक है बेटा. तो ये वर्किंग सबस्टेंस फिर से एक साइकिल स्टार्ट करने के लिए यहाँ पहुँच गया एंड इसने अपनी इनिशियल स्टेट, लिक्विड स्टेट रिटेन की है. ठीक है बेटा. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को. सो दिस इज हाउ ए हीट इंजन वर्क्स. दिस इज द स्मॉल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए हीट इंजन. ठीक है बेटा. अब देखो, now if we'll go with the working of heat engine, so heat engine works like this. हीट इंजन में काम क्या होता है, a working substance extracts some amount of heat from a high temperature reservoir. ठीक है. Let me suppose Q1 is the amount of heat absorbed. Now a part of this Q1 is used by the system in doing external work, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कैसे टरबाइन में यूज होती है. Then the remaining part of this heat energy with the working substance is given to the sink, which is also a thermal energy reservoir at low temperature. ठीक है. Now so that the system will retain या restore its initial state to restart a cycle. ठीक है बेटा. Now let me suppose Q1 is the amount of heat absorbed by the working substance. It is the amount of heat absorbed. ठीक है बेटा. Let me suppose W is the work done by the working substance per cycle. ठीक है. This is heat absorbed per cycle.
Now Q2 will be the heat rejected per cycle. ठीक है, एक साइकिल में suppose W is the amount of work done by the heat engine, Q1 is the amount of heat absorbed by the heat engine, and Q2 is the amount of heat rejected per cycle by the heat engine. ठीक है बेटा, और working substance of the heat engine. Now since हमें पता है heat engine, it works in a cyclic process. It works in a cyclic process. ठीक है, यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है, इट गोज अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, फाइनली अपनी जगह वापस पहुंचता है सो एज टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल. सो इन दैट केस आई विल से हीट इंजन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ cycle of processes, and we know for a cycle of processes change in internal energy is zero, or delta U is zero. We say internal energy of the working substance remains constant. ठीक है बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. नाउ इसी प्रिंसिपल को मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा बेटे, देखो. फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी नो dq इज इक्वल टू du प्लस dw. ठीक है बेटा. नाउ देखो, सिंस दिस हीट इंजन इज वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस, सो इंटरनल एनर्जी इज zero, in change in internal energy is zero, internal energy of the working substance is constant, so I'll say dq will be equal to dw as per first law of thermodynamics. ठीक है बेटा, और I can say dq is the change in the heat. How much is the change in the heat energy? That is equal to q1 minus Q2. कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसमें से कितनी हीट एनर्जी इसने सिंक को दी, जो डिफरेंस थी वो निकली इन द फॉर्म ऑफ वर्क पर साइकिल. ठीक है बेटा, तो दिस इज द आउटकम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर अ हीट इंजन. ठीक है बेटे, दिस इज द आउटकम. द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिजेक्टेड टू द सिंक इज इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल. ठीक है, कितनी इसने Q1 इसने एब्जॉर्ब की थी हीट, Q2 इसने रिजेक्ट की टूवर्ड्स द सिंक, बीच में जो इनकी डिफरेंस बची वो है इक्वल टू द वर्क डन पर साइकिल. ठीक है बेटा. नाउ इस हर एक जो हमारे पास डिवाइस होती है, हर एक डिवाइस की अपनी अपनी परफॉर्मेंस होती है, और हर डिवाइस की हम परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस करते हैं. इसी तरह हीट इंजन जो होता है इसकी भी हम परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करते हैं. कैसे करते हैं बेटा, इसकी परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय एफिशिएंसी. हम चेक करते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी है. अब हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा. ठीक है, कुछ नीटा पढ़ते हैं, कुछ ईटा पढ़ते हैं. ठीक है, दिस डिनोट्स द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन. सो दिस इज द बेसिकली द performance calculation of the heat engine. So how we do it, what is the thermal efficiency of a heat engine? It is defined as ratio of net work output, ratio of net work done per cycle. I'll write it like this: net work done per cycle, ठीक है, to the amount of heat absorbed per cycle. ठीक है, एक साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया इस वर्किंग सब्सटेंस ने, डिवाइडेड बाय एक साइकिल में कितनी हीट एब्जॉर्ब की किसने, इस वर्किंग सब्सटेंस ने. अब देखो बेटा, W से हम लिखते हैं वर्क डन, ठीक है, पर साइकिल. इसी तरह हम लिखते हैं हाउ वी राइट द हीट एब्जॉर्ब वी राइट एज Q1. ठीक है बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, I'll write the efficiency like this: efficiency is equal to work done by heat absorbed. अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटे, वर्क डन, हमें पता है अभी जो हमने निकाला वर्क डन का एक्सप्रेशन दैट वाज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, अब डिवाइडेड बाई Q1. ठीक है बेटे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इट विल बिकम 1 माइनस Q2 by Q1. This will give me the efficiency of heat engine, 1 minus Q2 by Q1, or I can write it like this. ध्यान से देखो, Q1 is the heat supplied, Q2 is the heat rejected. I can write it like this: 1 minus heat rejected by heat supplied. In simple sense,
1 minus heat rejected by heat supplied, where QR denotes the heat rejected to the sink by the working substance and QS denotes the heat supplied to the working substance from the source. ठीक है बेटे, अब देखो गौर से देखना, हर साइकिल में थोड़ी थोड़ी सी हीट टूवर्ड्स द सिंक चली जाती है. इट मीन्स ये वाला पैरामीटर कभी ज़ीरो नहीं है. अगर ये ज़ीरो होगा इट मीन्स कुछ भी हीट सिंक की तरफ नहीं गई. हमने देखा हर साइकिल में थोड़ी सी हीट टूवर्ड्स द सिंक चली जाती है. देयर इज ऑलवेज सर्टन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड टूवर्ड्स द सिंक. इट मीन्स दिस पैरामीटर इज नेवर ज़ीरो. This parameter is never zero. So I will say जब ये पैरामीटर ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, it has a finite value, this fraction or this fraction will have a finite value. जब ये finite value रखेगा तो 1 में से जब आप एक finite value निकालते हैं तो वो फाइनल वैल्यू जो इन दो का डिफरेंस जो आती है वो हमेशा 1 से कम आएगी. वो हमेशा 1 से कम आएगी. ठीक है बेटा. इट मीन्स ये जो हीट इंजन होता है इसकी एफिशिएंसी कभी 1 नहीं होती है. इसकी एफिशिएंसी इज नेवर इक्वल टू 1. इट मीन्स इट इज नेवर 100% एफिशिएंट. इट इज नेवर 100% एफिशिएंट. ठीक. अगर हीट रिजेक्टेड टुवर्ड्स द सिंक नहीं होता, अगर हीट रिजेक्शन टुवर्ड्स द सिंक नहीं होता, ठीक है, इट मीन्स क्यू आर या क्यू टू ज़ीरो होता तो ये पैरामीटर ज़ीरो बनता. इट मीन्स एफिशिएंसी 1 आ जाती. वो कब होता? जब हीट इंजन का डिज़ाइन ऐसे होता कि सोर्स से जितनी भी हीट ले रहा है वर्किंग सबस्टेंस, वो वर्किंग सबस्टेंस सारी की सारी हीट को यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन. ठीक है. दैट इज एक्चुअली एन आइडियल साइकिल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल. फाइन. दैट इज व्हाई आई से आइडियल साइकिल, ऐसे आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी होती है 100%. ठीक है बेटा. इट मीन्स जितनी भी हीट सोर्स से आ रही है वो सारी की सारी किस में यूज़ हो रही है? वर्क डन में. इट इज़ नेवर पॉसिबल. ऑलवेज वी हैव सर्टन अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड टुवर्ड्स द सिंक. दैट इज व्हाई वी से द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज नेवर 100% और इट इज़ नेवर 1. ठीक है बेटा. होप यू अंडरस्टैंड दिस. इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एंट्रेंस में जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा. Heat engine is composed of three parts. One part is the source of heat. Other part is the sink, and the third part is the working substance. ठीक है बेटे. तो हमने पढ़ा था कि सोर्स जो होता है हीट इंजन में वो हायर टेम्परेचर पे होता है. लेट मी सपोज टेम्परेचर T1. और जो सिंक होता है वो होता है लोअर टेम्परेचर पे. लेट मी सपोज टेम्परेचर T2. और वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है? वर्किंग सबस्टेंस हीट अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सोर्स. लेट मी सपोज दैट इज हीट Q1. एंड वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है? इस हीट को यूज़ करता है टू डू सम एक्सटर्नल वर्क. लेट मी सपोज दैट इज डिनोटेड बाय W. एंड बाकी जो बची कुची हीट होती है वो रिजेक्ट करता है टुवर्ड्स द सिंक. लेट मी सपोज दैट अमाउंट ऑफ हीट इज Q2 सो एज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. एंड फिर से वो साइकिल स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है वर्किंग सबस्टेंस. ठीक है बेटे. सो और इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने परफॉर्मेंस कैलकुलेशन की हीट इंजन की. कैसे? उसको हम लिखते हैं एफिशिएंसी से. एफिशिएंसी आप यूजुअली याद रखोगे. एफिशिएंसी इज गिवन एज द पावर ऑफ आउटपुट. इट्स द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. ठीक है बेटा. कितना आउटपुट हमें निकला डिवाइडेड बाय हमने कितना इनपुट दिया. यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से, आउटपुट वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क. ठीक है बेटे. और इनपुट हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो वी कैन राइट द एफिशिएंसी एज how much work we have extracted when we have given Q1 amount of heat per cycle. ठीक है बेटे. तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी. हमने कहा था द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हीट कंटेंट्स विल बी इक्वल टू द वर्क डन. इट मीन्स Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू द वर्क डन. ठीक है बेटा. क्योंकि सिंस दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस सो internal energy change will be 0.
फॉर यूजिंग बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें ये एक्सप्रेशन मिला था, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था. सो आई विल राइट द एफिशिएंसी एज वर्क डन के बदले बेटा मैं लिखूंगा Q1 माइनस Q2, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स माइनस हीट गिवन टू द सिंक डिवाइडेड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स Q1. ठीक है बेटा, शाबाश, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह. ठीक है बेटा. नाउ इस इक्वेशन को हमने लिखा था 1 माइनस Q2 बाई Q1 तक. ठीक है बेटे. अब देखो, this was the equation for the efficiency of the heat engine. Now if I'll continue this, ठीक है, for a cyclic process बेटे हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं that Q1 by Q2 is always equal to T1 by T2 for these cycles. ठीक है बेटे, Q1 by Q2 is always equal to T1 by T2. ठीक है. तो अगर हम कार्नोट साइकिल की हीट इंजन की एफिशिएंसी पे आएंगे, हम जिसको लिखते थे 1 माइनस Q2 बाई Q1, हम इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे 1 माइनस Q2 बाई Q1 के बदले लिखेंगे T2 by T1. This is the equation for calculating the efficiency of the heat engine, where T2 is the temperature of sink and T1 is the temperature of source, heat source. ठीक है बेटा, दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, और ये टेम्परेचर्स हमेशा कैल्विन्स में होने चाहिए. अगर किसी और यूनिट्स में दिए हैं तो पहले हमें इनको कैल्विन्स में कन्वर्ट करना है, फिर जाके हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं बेटा. इस पे एग्जांपल बेटा है, क्वेश्चन हमें बताता है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन. कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन. ठीक है बेटे, working between the temperatures 100 degree Celsius and 0 degree Celsius. एक हीट इंजन की एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, जो वर्क करता है बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस. सो सोर्स का टेम्परेचर T1 हमेशा हायर टेम्परेचर जो होता है, दैट इज सोर्स ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ हीट इंजन. ठीक है बेटा, सो दैट इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस. तो पहले चूंकि ये डिग्री सेल्सियस में है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. सो आई विल राइट 100 प्लस 273, सो इट विल कम आउट टू बी 373 केल्विन्स. ठीक है बेटा. इसी तरह लोअर टेम्परेचर सिंक का होता है T2, जिसको हम हीट इंजन में लोअर टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. इट विल बी 0 प्लस 273 will be equal to 273 kelvins. ठीक है बेटा, this is the lower temperature in case of heat engine. Now we have to calculate efficiency of the heat engine. We know the efficiency of heat engine in terms of temperature is 1 minus T2 by T1. ठीक है बेटा, 1 minus T2 is 273, T1 is 373. ठीक है बेटे. So once we will calculate this ratio, we will write 373 minus 273 by 373. ये डिफरेंस आएगी 100 by 373. ठीक है बेटा. सो इट विल कम आउट टू बी, एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी बेटा 0.268. ठीक है. तो परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करेंगे, सो परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी गिवन एज 26.8%. इसको जब हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो हमें एफिशिएंसी निकलेगी परसेंट्स में, इट विल बी 26.8%. सो इस हीट इंजन की एफिशिएंसी जो वर्क करता है बिटवीन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट होने के बाद कितनी हमें मिली, 26.8%. ठीक है बेटा. एक और बेसिक एग्जांपल करते हैं बेटा इस पे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है समझने के लिए. ठीक है बेटा, कहता है वी हैव टू हीट इंजन्स A एंड B. ठीक है बेटा, वी हैव टू हीट इंजन्स A एंड B. ठीक है.
तो ये जो ए वाला हीट इंजन है, इट्स हैविंग सोर्स टेम्परेचर 400 केल्विन्स एंड दूसरा टेम्परेचर इसमें गिवन है 350 केल्विन्स। ठीक है बेटा। इसी तरह जो हीट इंजन बी है मेरे पास, दैट इज वर्किंग बिटवीन 350 केल्विन्स एंड 300 केल्विन्स। ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन बताता है हमारे पास दो हीट इंजन्स हैं A and B working between the temperatures 400 and 350 kelvins, while B is working between 350 and 300 kelvins. We have to compare the efficiency of both these heat engines. ठीक है बेटा। पहले मैं इंजन A की बात करता हूँ। ठीक है, इंजन A में हायर टेम्परेचर ये है 400, लोअर टेम्परेचर denoted by T2 is 350. So if I calculate its efficiency, it will be given by 1 minus T2 by T1, 1 minus lower temperature by higher temperature. It will be equal to 1 minus 350 by 400. ठीक है बेटा। When I'll solve it, it will come out to be 1 by 8. ठीक है बेटा। अब मैं आता हूँ इस वाले हीट इंजन पे, हीट इंजन बी पे। When I'll calculate its efficiency, it will also be 1 minus lower temperature by higher temperature. So 1 minus sink temperature by source temperature. ठीक है बेटा। तो sink temperature यहाँ पे है 300 kelvins, source temperature है 350 kelvins. So the ratio will come out to be 1:7. ठीक है बेटा। This is efficiency of A, this is efficiency of B. ठीक है बेटे, यहाँ तक किसी को कोई confusion नहीं होगा। शाबाश। So when I calculate the percentage efficiency of A, ठीक है, that will come out to be 12.5%. Similarly, when I calculate the percentage efficiency of B, इसको मैं multiple 100 से देता हूँ, तो बेटा percentage efficiency of B जो है वो निकलती है 14.3. सो इस केस में हमें पता चला, पहले जो हमारा पहला वाला हीट इंजन था, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी निकली 12.5 और दूसरा जो था उसकी निकली 14.3%। तो 14.3% ऑब्वियसली ज़्यादा है 12.5 से। सो आई विल राइट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बी इज़ ग्रेटर दैन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ए। ठीक है बेटे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बी इज़ ग्रेटर दैन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ए। तो ऐसे हम कंपेयर किया हम लोगों ने।